1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 Corinthians 12 chapter 1 verse से 21 verse, Ecclesiastes 3 chapter 4 chapter 5 chapter। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 1 वचन से 21 वचन, सभोपदेशक 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय। जब हम 1 साल का 1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे इंग्लिश में तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम 2 Corinthians 12 chapter 1 verse से 21 वर्स तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। इंट्रोडक्शन। ही chooseth to commend his apostleship not by revelations but by his infirmities, blaming them for forcing this boasting। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body or I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knoweth how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Hallelujah. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest of apostles, though I be nothing. Truly, the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. For what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you. For I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. And I will very gladly spend and be spent for you. Though the more abundantly I love you, the less I be loved.
But be it so, I did not pardon you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you? I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? Walked we not in the same spirit? Walked we not in the same steps? Again, think ye that we excuse ourselves unto you? We speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying. For I fear lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not, lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults, and lest when I come again my God will humble me among you, and that I shall be aware many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 1 वचन से 21 वचन पूरा करेंगे DSI बाइबल में से। पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता 12 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घून से मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। कुरिन्थियों के लिए पौलुस की चिंता 11 वचन से आगे। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे? केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो।
देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊँगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। 17 वचन। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, जो तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा से के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारे उन्नति ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाऊँ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए। इतना प्यारा वचन परमेश्वर तेरे प्रेरित पौलुस ने हम तक पहुंचने के लिए रखा है। हम इसे व्यर्थ ना जाने दे। पवित्र आत्मा का प्रकाशन हम में उतर कर आए, इसमें हम बढ़ चढ़ कर उन्नति करें। हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर के ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।